अभी हम यमुना जी पार करके जा रहे तुलसीदास जी का जन्म स्थल में ರಾಜ್ಪುರ್. ತೋ ತುಳಸಿದಾಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನದಿ ದಾಟಿ ಬಂದರು ಅಂತ. ಓ ಯಹಿ ಯಮುನಾ ಜಿ ಹೈ ಜೋ ಶವ್ ಕೋ ಲೇಕೆ ಪಾರ್ ಕಿಯೇ ಥೆ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ. ಪ್ರಯಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಧೇರ ಹೊರ್ಕಾಯ್. ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಶಿವಾಲಯ, ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಆದ್ರೂ ಬೇಡವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ. ಏನು ಲೈಟ್ ಗಿಟ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮದಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಯಾರು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಶಿವಜಿಯವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿದಾಸರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವು ಕೂಡ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ತುಳಸಿದಾಸರಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾಗಿ ತಾನೆ ಅವರು ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯವರು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಉದ್ಧಾರನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ತುಳಸಿದಾಸರು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತುಳಸಿದಾಸರಾಗ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರವರಿಗೆ ಮೊದಲು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಜಿಯವರು ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಜು ಇದೇನ ಈಗ ತುಳಸಿದಾಸರು ಬರೆದ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ, ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ, ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದೀಜಿಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಿವಾಲಯ ಇದು. हमने सोचा था यही उनके घर है, मगर ये शिवालय है, ये सेकंड शिवालय मिल रहा है. क्योंकि तुलसीदास जी का घर में जो असली रामायण की मूल प्रति, हस्तलिखित प्रति अभी भी है. बस वो तुलसी रामायण की मूल प्रति को दर्शन करने के लिए अभी हम इतना ढूंढ के जा रहे हैं. ಕೊನೆಗೂ ಆ ಜಾಗ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಹೇಳಿ ಓದಿ. ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತ मानस मंदिर, राजापुर धाम, चित्रकूट. गोस्वामी तुलसीदास जी का हस्तलिखित रामचरित मानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं. उत्तराधिकारी हैं अभी रामाश्रय त्रिपाठी जी. ये है रामचरित मानस मंदिर. अभी टाइम हो रखा है, बंद कर दिया गया है और हम पुजारी को बुला रहे हैं. ಒಳಗಡೆ ಲಾಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದೆ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸದ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ. लॉकर में रखा गया है सेफ्टी के लिए. अभी इस प्रति का जिम्मेदारी पुरातत्व इलाका का है, इसीलिए ಪಂಡಿತರು ಯಾರೋ ಮನೆಯ ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಅವಳಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಡಿತರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು ಯಮುನೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಮುನಾ ನದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯही उनकी जन्मभूमि है. इसके ऑपोजिट ही यमुना नदी बह रही है. यमुना है और ये उनकी जन्म भूमि है जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था. अब एक अंधेरा हो रखा है और रात भी हो रखा है, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है.
काली मोबाइल लाइट में हम देख रहे हैं, यही मूल जगह है जहाँ तुलसीदास महाराज जी का जन्म हुआ था। और बगल में जो मंदिर है उधर उनका मूल प्रति तुलसी रामायण का है। ये है विशाल यमुना जी। बस करंट गया है इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है, ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ यमुना जी का दर्शन रात नहीं हो पा रहे। इधर अखंड रामायण चल रहा है, रामायण का पाठ कर रहे हैं क्योंकि ये मूल जगह है ना, पाठ चल रहा है किसी का। हम अंदर देखने का कोशिश तो किया मगर कुछ दिख नहीं रहे। इधर मंदिर भी है, ऊपर भी उनकी मंदिर है, बस इतना ही दिख रहा है। ಜಾಗ ರಾಜಪುರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ चित्रकूट जिले राजापुर। ರಾಜಾಪುರ 2004 में चलता ही तो था, लेकिन जब पूरा तंत्र महाराज जी ऐसा ऐसा कीजिए नहीं तो गड़बड़ होगा, तो फिर धीरे धीरे कम हो 3 साल से लगभग बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन कहीं कहीं हर लोग हर तरह के तो होते हैं, मुंडे मतिर भिन्न है, अपनी अपनी सोच होती है और कुछ नहीं। सज्जन पुरुष तो हमेशा मानता है, यही उसकी पहचान है। किसी को कुछ कहना नहीं है, सब सज्जन है। बिल्कुल जिस दर्पण अपने को दिखाता है। मैंने 450 साल का लिखा हुआ हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। चैत्र शुद्धि नवमी आ जाए ना तो 450 से पूरे हो जाए। तुलसीदास जी महाराज जी ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। अब बताते हैं भाई, वो संख्या थोड़ा हिंदी में हाँ नहीं होता है। अब यही नाती जो मेरे साथ आए इसको कह दो 49 लिखो तो लिखे कक्षा 4 में ही पढ़ता है, इस रामायण को भी पढ़ लेता, उसको भी पढ़ लेता, राम रक्षा पूरा याद। वो तो मेरे साथ बैठ जाता था तो ठीक है। और 126 साल 126 मुझे अंग्रेजी नहीं आता 126 साल जिए तुलसीदास जी। उम्र थी, आयु थी। ये सब लोगों के भेंट हैं, कुछ दिनों तक मानते, बाद में सब हटा देते हैं, निकालते बहुत है, निकालने नहीं जाए तो पागल रहता है। ये मुरारी बाबू का है, राम चित्रकूट धाम तलगागढ़ गुजराती भाषा। अपने यहाँ से जिनको मालूम है वो बना खा, पहले उनके नाम था सावित्री माँ के नाम। ये एक कांड बचा है। अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ, मैं अपनी दरबार में तुम्हें मनसबदार बना दूंगा। तुलसी बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होएंगे नर के मनसबदार। इस शरीर का पट्टा तो राम की दरबार में लिखा हुआ है, और जहाँ जिसका पट्टा वही उसका मालिक है। अब तुलसी मनुष्य के मनसबदार नहीं होंगे, जिसके हैं उसके हैं। अकबर ने नाराज होकर तुलसीदास जी महाराज जी को जेल में बंद कर दिया था। तो जेल में इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। तब जाके बंदरों ने उत्पात मचाया, नई दिल्ली बसानी पड़ी। पहले यातायात अधिकांश जल मार्ग से होता था, सड़क तो एक ही थी। तो दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए यहाँ से प्रयाग अकबर का किला, यही रास्ता था, यही अकबर की नाव बंधी थी। तो कहा यहाँ तो इस जंगल में तो अंधी की सुगंध आ रही है। तो बीरबल ने कहा सरकार ये तुलसीदास जी का जन्मस्थान है, कहीं चलो देखते हैं। तो आए, देखे तो उस समय दोपहर का टाइम था, इन्होंने खिचड़ी बनाई थी, भगवान को भोग लगाया है कि लोग पहुँच गए। देखा बैठा रहा, कहा भाई प्रसाद है, अगर लेना चाहे तो। भाई वो मुस्लिम है, वो तो हिंदू है, प्रसाद लेना चाहे तो ले सकते हो। तो बीरबल ने कहा महाराज मैं तो लूँगा।
अकबर ने कहा मैं भी लूँगा, तो थोड़ा थोड़ा उनको दिया। प्रसाद पाए तो अकबर उसको खा के दंग रह गया कि मैं इतना बड़ा सम्राट, इतना सुंदर भोजन कभी किया नहीं, पाया नहीं। तो बीरबल ने तुरंत टोक दिया, महाराज जी भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है और प्रसाद की महिमा होती है। अकबर ने 96 बीघा जमीन यहाँ की, ये घाट का टोल टैक्स और बाजार, हाट घाट बाट की मुआफी दिया था और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुलसी के समय के, मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मुहर से सब मेरे अंदर रखे हुए। मानस के अलावा ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। अच्छा, आप उसी पर पैतृक ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था, अब इससे ज्यादा कौन देखा है। इसमें डाक वाले तुलसी थे। इसके लेखक भी इसी महाविद्यालय के, महाविद्यालय है, मेरी शिक्षा दीक्षा यही हुई है। कॉलेज में 8वीं पास किया हूँ, 9वीं में पिताजी नहीं रहे, ये तिजोरी मेरे इस कच्चे घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बाद में हुए हैं, कमलापति त्रिपाठी बहुना जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, वर्तमान में राम भद्राचार्य गुरु जी को, जब वे बनारस में प्रोफेसर थे, सबको मैंने अपनी उस कच्ची वाली झोपड़ी में दर्शन कराया। ये मेरे घर का खड़हल था। तो कलकत्ते से इस पुस्तक में मंत्र नहीं मिलेगा ना स्मारक मिलेगा। मेरा घर मिलेगा, तुलसीदास जी की मूर्ति मिलेगी और हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी, संकट मोचन हनुमान जी की। बस वो मूर्ति और ये 2 चीजें यहाँ उनके हाथ की हैं। ये वंशावली है, कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य भला गणपत राम के वंशज, अभी तक तुलसीदास जी का वंश नहीं है। हम भ्रम न रहेगा, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार यही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है, ये वंश वृक्ष है, फैमिली ट्री। अब ट्री जो है नीचे से ऊपर को चलता है और वंशावली ऊपर से नीचे को चलती है। ये अंतर है। तो ये गणपत राम जी मूल में आए, इनके 2 लड़के शिवाराम मदारी राम, इनके 3 हुए उद्धव माधव केशव। हम लोगों का 3 कूड़ा चला, एक का दिया गया जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में। हम किसी से भी पूछे, आपसे भी पूछे, तो आप में बाबा तक का, पर बाबा तक का बता सकते, आगे बताना मुझे लेखक। तो माधव राम के पंचम राम, हनुमान दिन, भैरव दिन, विश्राम, मुंडीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, तब मैं रामाश्रय। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से छिपेगा। मेरे पिताजी तो थे, उनका भी नाम नहीं आया। क्यों? गार्जियन के रहे थे, उसकी संपत्ति उसके बच्चों के नाम नहीं आती, इसलिए इसमें 2 नाम लिखे गए। ये छपी कब है? ये देखो, लेखक महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा। बांदा डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा है, पुराने हैं। प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर में तुलसीदास जी पैदा हुए थे। अब तो कई जगह पैदा हो गए। रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे, रामायण जी में जो कुछ मिलता करता था भेंट वो खुद लेते थे। पुजारी को संतोष जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, घमीरा जानते हैं ना, भृंगराज, उसका पौधा, उसका रस निचोड़ते हैं। घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस, और माताएं जो पहले बच्चों के लिए काजल पारती थी, बाटी बना के, वो सूखा काजल डाल के महीनों घोटते थे, तब सह करती थी। और जिस पर लिखा गया है ये सब भोजपत्र नहीं है। बड़े उत्तर देने पड़ते थे तो मैं सब काट देता हूँ पहले से। न ये भोजपत्र है, न ताड़पत्र है, न ताम्रपत्र है, कुछ नहीं, कागज है। और तुलसीदास जी ने पेपर में कागज में लिखा था। बाबा के पैदा होने के 400 वर्ष पहले, 400 बिफोर, कागज बन गया था।
6वीं से 8वीं तक ताम्रपत्र चला है। सदी में आम तांबे के पत्ते पीट के गोद गोद के लिखते थे। 8वीं से 10वीं तक ताड़पत्र चला है, कलम बनी स्याही से डुबो डुबो के लिखते थे। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। अधिकांश लोग कहते हैं भोजपत्र में लिखा है, इसलिए मैं सब काट देता हूँ। और 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे, आप लोग पढ़े होंगे। 14वीं में भारत में आया है। और तुलसीदास जी तो 17वीं में लिख रहे हैं। 1631 संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी चतुर्दशा। राम जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया है, 76 वर्ष की आयु में। लोगों का प्रश्न हो जाता है कि जब उनको अयोध्या में लिखना है, राम जन्मोत्सव में ही लिखना है, चैत्र शुद्धि नवमी को ही लिखना है, तो 76 साल क्यों इंतजार किया? अरे भाई हर साल तो होती है, कभी भी लिख सकते थे। तो तुलसी ने ऐसा नहीं किया। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गाँव में, राम जी जिस नक्षत्र मुहूर्त घड़ी लग्न दिन समय में त्रेता में पैदा हुए थे, वही नक्षत्र घड़ी मुहूर्त दिन समय 1631 में आया है। नहीं 2-2 रामनवमी हो जाती है, हमारे यहाँ 3-3 कृष्ण जन्माष्टमी हो जाती है। हमारे यहाँ के रूपा यहाँ जमींदार हैं, एक छठ के बाद पूजा, 7वीं को इनकी जन्माष्टमी हो गई। और फिर अब वैष्णवा नाम स्मार्ता नाम हो जाता है। कहीं 12 बजे रात के अष्टमी नहीं रहती, कहीं रोहिणी नक्षत्र नहीं रहता, सब एक साथ कभी कभार होता है। इसलिए रामचरितमानस घर घर व्याप्त है। एक बात का अंतर है, ये वही दोहा चौपाइयाँ हैं जो आप लोगों को याद है, वचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, वही है, वही शब्द है, वही दोहा है, वही चौपाई है। लेकिन इसके पढ़ने में आपको दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि आप 500 वर्ष के लेटर से नहीं जानते। अक्षर बदला है, पुराना जो उनके समय में चलता था वो अक्षर है। अब तो कई जगह दिखाते हैं। तुलसीदास जी ने हाथ कर दिया, छोड़ो, मुझे कहीं जाना नहीं, आपका विवेक आपके साथ। अब जो जिस समय का है उसमें उस समय के अक्षर मिलते हैं। मेरे यहाँ शोध संस्थान खुला है, PhD करने वाले बड़े बड़े लेखक लोग उसका लाभ लेते हैं, उसका लाभ लेते हैं। तो अक्षर बदल रहे हैं। इतनी देर बैठे रहे हैं, अब मुझको भी लगता है कि आप कि कोई जिज्ञासा हो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि आत्मसंतोष मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एक से विद्वान आते हैं, ये मेरा भाग्य है, प्रारब्ध है कि आप जैसे विद्वानों के दर्शन घर बैठे हो। ये अनुभूति है। लोग कहते हैं कि आपको कहीं भगवान के दर्शन हुए, मेरे भगवान यही है जो उनके आदर्शों को माने, वही असली वंशज है। नहीं सगा बेटा नहीं होता, दूसरे की तो बात छोड़ो। रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बहन ये सब आप नए झोले देख रहे हैं 2004 की, लकड़ी पुरानी है, बाकी सब नए झोले देख रहे हैं। अब मैं आपको पहले अक्षर दिखा दूं तो उसके खोलने में आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। इस पुस्तक में आज तक का है। अच्छा, ये अक्षर और ये अक्षर बदला है। 52 में हाँ, फोटो दोनों पढ़ने के लिए ना भला भैया। हाँ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ರ अच्छा ये अभी का है, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬೋದು ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ದಾಗ ಹಾಂ, ನಾವು ಆಗಲಿ
हाँ अच्छा, फिर फोटो ले रहे हैं तो एक आध पन्नी फोटो ले लीजिए। 26-32, हाँ ठीक है। ये दोनों पन्ने अलग अलग ले लीजिए, चाहे एक में लीजिए जैसा आपका बने। पढ़ते रहिएगा, बाद में डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं पुस्तक का वो दिखा रहा हूँ ना, अपने मतलब का। हाँ भैया, इसकी भी फोटो ले लो इससे। हाँ ये तुलसीदास जी की हैंड राइटिंग की फोटो कॉपी है। देखिए जैसे बहन अच्छा, मैं कहूँ यहाँ से पढ़िए आप इस लाइन से, चाहे इस लाइन से पढ़िए, पहली से चाहे दूसरी से, पढ़ने में दिक्कत होगी थोड़ा। अनलावा पर मैं तो कोशिश किया। नहीं, कन्नड़ में भी ऐसी है ना। ना 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 ना, ये पूरा हिंदी, पूरी हिंदी नहीं है। नहीं, हमारा कन्नड़ में भी 100 साल की कन्नड़ अलग है, हम नहीं पढ़ सकते। 100 साल में जो हाँ नहीं, वो तो समय के अनुसार परिवर्तन करना है। अभी बदल अब रखा है। देखो बहन, जो मेरा नाती है, उस मेरे सवाल उसके अध्यापकों को नहीं आते और उसका सवाल मुझको नहीं आता। भाई अब जैसे कह दिए 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप कह दिए 1 तोला है, 6 आना है, 2 रत्ती है, 3 मासा है, तो समझ में आ गए, फार्मूले बदल गए। अब ग्राम, डेका ग्राम, मिलीग्राम में नहीं जानता। अब नाम सुन सुन के मतलब इतना है नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ मेरे भैया, ये आपने लिया कहाँ से? आपके पास आप पूछे कोई कि ये कहाँ से लाए, तो आप यही कहेंगे महाराज जी ने पुस्तक दिखाई थी। लो भैया, ये पन्ना लो। ये पुस्तक का नाम, लेखक का नाम सब, ये राम गणेश जी पांडे तुलसी इंटर कॉलेज की हिंदी प्रवक्ता थे, हैं अभी हैं। इनका लड़का शिक्षक संघ का अध्यक्ष है और अब सरकारी पुरस्कार इनको कम से कम 2500 मिले हैं, हिंदी में भी और भी। और बहुत बढ़िया लेखक हैं और कई पुस्तकों के लेखक हैं। ये राम गणेश पांडे। अब मंजिल इसमें 100 रुपए है, अब मंजिल 200 रुपए की आती है। ये 100 से शुरू हुई है, 150 तक रही, अब 200 की हो गई। तो अलग है, लगभग पूरा हो गया। देखो बहन, मैं आपको वो दिखा दूं, ये अंग्रेजों के टाइम का 8 आने का स्टाम्प है। स्टाम्प 8 आने का है, तो हर भाषा होती, हर भाषा है। मुस्लिम पीरियड का है तो उर्दू में मुहर लगी हुई है, सील लगी हुई है। और ये जीनीप का लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आ रहा, लेकिन ये पढ़ने में आ रहा है। ये 2 सितंबर 1846 का है, 1846 का है, आज 2022। अंग्रेजों के टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का है। ये देखिए नीचे, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट NWP, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है। आगरा के सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के कमिश्नर को लिखा है, ब्राह्मण माफीदारों को नेट कलेक्शन दिया जाए। आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थी। भारत में 2 ही प्रांत थे, आगरा की कमिश्नरी इलाहाबाद थी। इलाहाबाद से आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह ये आगरा डिवीजन में आता था, आगरा प्रांत में। और प्रतापगढ़ से बिहार वगैरह ये सब अवध प्रांत में आते थे। 2 ही प्रांत थे 1846 में। ये डाकू ओरिजिनल अंदर रखे हैं, उनकी जिराफ है। हाँ, ये बादशाह, सभी को देख दिखा ले सकते हैं, ये ठीक ही है। ये बादशाह आलमगीर का। अच्छा, ये आलमगीर माने उनकी भाषा औरंगजेब। लिखा है। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। ये उसका आदेश है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चला जाए। अच्छा अच्छा, मंजूरी दी उसने, छीना नहीं है। ये ओरछा नरेश, ये पहले पन्ना राज्य के अंतर्गत आता था, फिर ओरछा राज्य के अंतर्गत आया है। तो ओरछा नरेश महाराजा हिंदूपति जू देव, इसमें वा और या के नीचे बिंदी है बहन। शिवाराम, अब आप हिंदी जानते हैं, आप देखिए, पटो कर दयो, या के नीचे बिंदी है। आ हमारा है, आज का नहीं, बिंदी नीचे है ना। ये माघ सुदी छठ संवत 1812, मुकाम श्रवणी, संवत 1812 का है। आज संवत 2080 चल रहा है, 268 साल पहले का है। हाँ, अब अक्षर आप समझ लीजिए,
मैंने अक्षर की फोटो दी है, अक्षर की व्याख्या नहीं की। नहीं, अभी आपके पढ़ने में नहीं आएगा। ये आ और ये अय और ये झाड़ा मैं लिखता हूँ महाराज जी, आप भी लिखे हैं बचपन में। 55 के ऊपर वाले जितने हैं सब लिखे हैं, मिनिमम 50। अभी नहीं है। और अब 50 के नीचे वाले इनको पढ़े हैं, लेकिन लिखते इधर के 4 ये वाले 4 नहीं, ये वाली जो हो गई है ना? क्योंकि हम वो देख के ही पढ़े हैं तो वही लिखेंगे ना। हाँ। अब ये 4 अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे ना, आपके हमने इनको सीखा है। अच्छा, इनमें से 2 कक्षा 3 से लेकर महाराज जी मुझसे बूढ़े तक 2। हाँ बहन देखो, थोड़ा बहुत हिंदी जानती हो। हाँ हाँ, कुछ नहीं। देखिए, शासट कौन कहते हैं कि खा खटकोण इसको, आप क्या कहते हैं? शा की खा। अभी तो 100 है, उस टाइम तो खो चलता था। नहीं नहीं, आज की बोलिए आप। हाँ। आप लोग शासट कौन कहते हैं, यमुना की उस पार वाले सब शासट कौन कहते हैं, इस पार वाले सब खा खटकोण कहते हैं। हम पढ़ते भी हैं यारा लावा सा खा साहा छत्र। ये बुंदेलखंड का खा है, अवधी भाषा का खा है, और वेद का खा है। सहस्र सी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा पूखा विश्व वेदा स्वस्तैन में है ना खा। तो इसको तो लिखते हैं छोटे से बूढ़े तक। अगर ये राग है, ये वाला राग, ये वाला राग, इस राग को आप एक जगह लिखते हैं, राजापुर राधा राम बदन राम नरेश राम कृपाल, है ना? इस राग को आप 10 जगह लिखते हैं कम से कम। मैंने आपको 2 ही राग दिखाए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। हम लोग महाराज जी हिंदी में 4 प्रकार के राग बनाते हैं। 4 शुरू में करता हूँ। पहला राग राम, इधर वाला। एक रेफ का ऊपर लगाते हैं, उड़ंतु रेफ, हर्ष बरखा निर्देश, शर्म कर्म धर्म नर्म कर्मी, है ना? ऊपर उड़ता हुआ 2। तीसरा हम लोग पदेन लगाते हैं ऐसे, त्रा। हाँ, रा प्रा, ये वाला है। इसमें एक लाइन और लगाइए, त्रा हुआ, आधा पा लगाओ प्रा हुआ, आधा गा बनाओ ग्रा हुआ। क्रय विक्रय त्राण प्राण घ्राण द्रव भ्रम नम्र भद्र ध्रुव ब्रजेश विनम्र कब्र सब्र, सबसे ज्यादा हम इसी को लगते हैं। ये रा हर अक्षर पे लगता है, और ये पूरा है। इसके साथ जो भी अक्षर जुड़ेगा वो आधा होगा। शास्त्र का नियम है, संयुक्त अक्षर जो चलता है पहला अक्षर आधा होता है। इसे प्रेम है। अब प्रेम में जो उसमें ISPCS की परीक्षा, IS की परीक्षा में पूछा गया था, प्रेम में आधा अक्षर कौन है? अधिकांश लोग रा कह देते हैं। हिंदी में लिखने वाले हैं पा आधा अक्षर लिखते हैं। भाई गुरुजी प्रेम कैसे लिखते हैं? तो गुरुजी बता देते हैं ना, अरे बेटा पा बना के आधारा लगा दो। यही गलती है, जबकि ऐसा नहीं है। पा आधा है, रा पूरा है। उग्र ग्रा, गाधा बोल रहे हैं, रा पूरा बोल रहे हैं। विद्यालय, अब इसमें रा नहीं है, दा आधा है, या पूरा है। विद्वान 3 हुए, राम रेफ पदे। चौथा कहाँ है? हाँ भाई, चौथा रा कहाँ है? लिख, मैं परीक्षा नहीं ले रहा, मेरी बात तो माफ कीजिएगा, बुजुर्ग लोग हैं, मैं उठ पढ़ाने। देखो, बहुत से लोग इसको कहते हैं कृष्ण, अमृत, घृत, गृह, कृपाशंकर। ये ऋषि वाली जी की मात्रा है, मात्रा है, स्वर है। छोटा वो बड़ा लृ, ए ऐ ओ औ अंग स्वर है। ये व्यंजन नहीं है, स्वर है, मात्रा है। चौथा रहा है, अंग्रेजी की वी बनाते हैं ना लोग, वी, इसको उल्टा कर दीजिए, ये चौथा रहा है। ये राष्ट्र, ड्रामा, ड्राइवर, ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ड्राइव, राइट, ट्री, ट्रस्ट, ट्रम्प, ड्रग, ड्रोन। डा और टा में लगता है मात्र 2 अक्षर।
और जिस लेख में यावा के नीचे बिंदी हो 250 वर्ष पहले का हम बिंदी नहीं लगाते। हम बा का पेट चीरते हो, पेट नहीं चीरते। हम आप बड़ाऊ इसको लिखते हैं। 350 वर्ष पहले बड़ाऊ की मात्रा ऊपर होती थी महाराज जी, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा। अब सरलीकरण हुआ, छोटी बड़ी तो वही है, लेकिन छोटा बड़ा पीछे आ गया, ये वाला है। तो बहन ये वाले अक्षर एक भी नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे। आप इन अक्षरों का प्रयोग करो तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो नहीं। आप इतनी देर से इंतजार किए हैं तो 10 मिनट और सही। मेरे भी भाव है कि कम से कम कुछ नहीं तो जो मन में है तो पूरा हो। ये सब नए झोले हैं 2004 के। ये वाला 1980 का है, लाला रामशंकर भाई वाले धर्मार्थ ट्रस्ट जनरल कानपुर वालों ने 1980 में लगाया था। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले टिंकल्स लगा के इसको सुरक्षित किया गया है। ये देखिए, ये उनकी हैंड राइटिंग है, पांडुलिपि। ओरिजिनल में ही इतनी मोटी मोटी लिखती है। ओरिजिनल ये फोटो स्टेट नहीं भला भैया, ये झोले के अंदर है, टेप से बंद है, और पन्ना खुला है। और ये देखिए, ये इसकी कंडीशन है। आपको सब दिखाई दे, सब फटा कटा। ये कागज यहाँ है, मेरी पकड़ यहाँ है। भारत सरकार ने बढ़ा के लगाया है ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ा के। कहीं ज्यादा साफ है, कहीं ज्यादा मिटा हुआ है। हाँ पढ़िए, आप लगा सकते हैं। हाँ ऐसे देखो ना, पूरा का पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। झोले के अंदर है सब। अरे हम तो प्रणाम कर लेंगे क्या? नहीं देखो देखो देखो, हाँ हाँ देखो भाई, ओ ये पहली चौपाई खुली है, ध्यान क्रम में नहीं है। अच्छा ऊपर नीचे इसे पाठ तो होता नहीं, मात्र दर्शन पाठ की रामायण तो होगी तो पहली चौपाई है। जो दाई फल चार आता है ना, सुने है ना। देखिए, जब अभी हमारा आप कौवा है पे मैं बा पढ़ रहा हूँ, इसके नीचे बिंदी होती तो वा पढ़ता, बिंदी नहीं है तो बा पढ़ रहा हूँ, मेरे पढ़ने में अंतर है। जब ते राम, वही रहा है, ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। देखो बहन, ये बा है और ये वा है। इसके नीचे बिंदी है, इसमें कोई पेट नहीं चिरा है। पहले पेट नहीं चिरते थे। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ। अब ये घा 500 पहले का है। ये बा है, ये रा है, ये खा है। बरखही सुख बारी, रिधि सीधी संपत्ति, नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एत निय बिरंची करतूति। ये हमारे सब वो है ना, सबको मैं बा पढ़ूंगा, बिंदी नहीं है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी।
मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, बड़ा ऊपर, मात्रा ऊपर है, हम लोग पीछे लगाते हैं। प्रमुदित होहि देखी सुनी राव, ये वही रा है, और ये बड़ा ऊ है, ऊपर मात्रा है। दोहा है, दोहा बराबर। दर्शन है, दर्शन का महत्व है। जय हो, जय हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अरबी है, फारसी है, तेलुगु है, गुजराती है, मराठी, हर शब्द है। उनका शब्दकोश बहुत बड़ा है। अरे भाई, हैं कौन? भविष्य पुराण का श्लोक है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वीम भाषा रूपम करिष्यति। हे देवी, कलयुग में वाल्मीकि तुलसी के रूप में आएंगे, तो क्या करेंगे कि रामचंद्र कथाम साध्वीम, जो भगवान राम की पवित्र कथा है, उसको हिंदी भाषा में करेंगे। बिल्कुल। ये रामायण का ट्रांसलेशन नहीं है। तुलसी के राम और वाल्मीकि के रामायण, राम में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। वाल्मीकि के राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी उन्होंने राजा राम का वर्णन किया है। राजा ने जो किया है सत्य घटना लिखा है, तुलसी ने ऐसा नहीं किया। तुलसी के राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनकी लेखनी के द्वारा कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, इसीलिए इन्होंने लवकुश कांड नहीं लिखा। लवकुश कांड में लवकुश की जीत है, राम की हार है। एक भक्त अपने इष्ट की हार पसंद नहीं करता। माता को रानी बना दिया, राम को राजा बना दिया, अयोध्या का राज दिला दिया, अब इसके बाद फिर से जंगल में भेजना नहीं चाहते। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश कांड में, उत्तरकांड में इतना डाल दिया है। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। लवकुश नाम है, वेद पुराण गा रहे, मैं नहीं गा रहा। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप नसीब मेरे। एक बार फिर से बोलिए, कौन कौन सी भाषा इसमें? सभी है, हर भाषा है भारत की। अच्छा, अंग्रेजी के भी है। अंग्रेजी के भी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया, नियर आया, नियर आया। नियर आया। नीट ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಇದೆ। बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। वही प्रसाद है। हाँ जी। सब प्रसाद। ಭಾಳ ವಿಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಫಾಗಿಂದ ರೋಡೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಏನಾರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಡಿಯೂ ಆನಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಐಸ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಏನಕ್ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೆಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗು. ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ. ಚಳಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬಾ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐಸು, ಚಳಿ, ಮಿಸ್ಟು, ಕೊನೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ವಿ ಚಿತ್ರಕೂಟಧಾಮ.